So good afternoon, everyone. So already we have started sequential circuit, means flip-flops, and over there we have completed the basic difference between the sequential circuit and the combinational circuit. Then different types of flip-flops, mainly SR flip-flop, set reset flip-flop, D flip-flop, delay flip-flop, D flip-flop, toggle flip-flop, JK flip-flop. Okay, all these we have completed. And we found that in the case of SR flip-flop, if we apply S is equal to R is equal to 1, in that case we don't have any definite output. So that is called indefinite output. So prohibited state, or this is also called the forbidden state. Okay, so we will never use S and R both high. So when S and R both are 0, then the output is no change Excuse condition. me, sir. Okay. सॉरी फॉर डिस्टरबेंस सर, ओके सर, बट आपका आवाज कुछ ज्यादा ही इको कर रहा है सर, आवाज आपका अच्छा है ना अच्छा, इको कर रहा है। ओके देखते हैं, ओके
हेलो, देखो तो यस सर, अब क्लियर है। अब क्लियर है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यस। यू। So, in the case of SR flip-flop, already we all have seen that if we apply 0, 0 input, S and R both are 0, then the output is neutral conditions. If we apply S is equal to 0, R is equal to 1, then it is called reset state. If we apply S is equal to 1, R is equal to 0, then it is called set state. And we know that we never use S is equal to R is equal to 1. Okay, also we have done lab work also. And we have seen that problem basically the disadvantage of SR flip-flop can be avoided by means of JK flip. Over there, all the other three conditions, that is 0, 0, 0, 1, 1, 0, it remains the same. Outputs are remain same. But when we have applied J is equal to K is equal to 1, that means both the inputs are tied together, and if we apply it high simultaneously, then we observe that output will be toggling. What does it mean? That means if we have zero output, that is Q is equal to 0, next you are applying the clock, then what will happen? That 0 should be converted into 1. After that, if we apply again the clock, that output, now we are having high output, so that will also be changed to 0. So 0 again changed to 1, 1 again changed to 0. So it will go and go on if we apply successively the clock. So that means what happens if we apply the clock, okay, so your output will change. Okay, so that means 0 will change to 1, 1 will change to 0, 0 will change to again high. So that condition is called toggle. But here we are having some problem. What is that? The problem is that here, suppose the clock having the wider one. Try to understand. You are having the clock and that is wider one. Okay. That means you are applying the level trigger. You are not applying the edge trigger. Okay. You are not applying the edge trigger. Suppose you are applying the level trigger. Then what happens? If the width of the pulse is high, that means the high time is much higher than the delay time of this flip-flop. So what does mean by delay time? That means you are applying input and you are getting the output. The time gap between these two is called the delay time. So you are applying the clock and that clock having the wider time period. मतलब मैं क्या बोला, उसका ऑन टाइम ज्यादा है. तो क्या होगा, सिंगल क्लॉक के लिए आउटपुट में 2 बार और 3 बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक इज प्रेजेंट. So when the clock is present, then what happens? Your Q is coupled to the G4 and Q bar is also coupled to the G3. So what will happen if clock is present and if that clock length is higher, that means the high time of the pulse is much higher, then what happens? For single clock, there will be multiple change. A thing should happen for single clock, single change. You apply the second clock, so the next change will apply. If you apply the third clock, then that will also change. But if you are applying the single clock, and that is having the wider high time, that will make multiple changes at the output. Getting my point? So that is called race around condition. Then what does it mean? For a single clock, multiple changes occur at the output. मान लो क्या होगा, आउटपुट में 0 है, यू हैव अप्लाइड द क्लॉक विद लॉन्गर हाई टाइम, क्या होगा, 0 तुम्हारा 1 हो जाएगा. उसके बाद एज द width of the on time is higher, then what happens? So that clock basically will remain present, and ultimately which was previously changed to 0 to 1, that 1 will couple to the G4 and 0 will couple to the G3, and automatically your output will also change. So it will again change to 0.
सो दैट मीन्स क्या हुआ, सिंगल क्लॉक के लिए तुम्हारा आउटपुट में दो बार, वन से ज्यादा, दो बार और तीन बार चेंज हो जाए। इफ दैट हैपन देन इट इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। सो बोलो समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो दोबारा हम बोलेंगे, बताएंगे। थिंग इज दैट आई एम समराइजिंग दैट इफ द क्लॉक तुम्हारे पास है, क्लॉक का ऑन टाइम ज्यादा होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट दो बार तीन बार चेंज हो जाएगा। लेकिन सिंगल क्लॉक के लिए तुम्हारा सिंगल चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि कंट्रोल नहीं है। ये आउटपुट चेंज होके फिर भी नीचे में जो जीपर गेट है उसी जगह में चला आएगा, एंड क्यू बार का आउटपुट वो भी G3 में चला जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द क्लॉक इज हाफ और वाइडर है, ऑन टाइम वाइडर है, इसलिए सिंगल के बदले में दो बार और तीन बार आउटपुट चेंज हो जाएगा। तुम तो जानते हो क्लॉक प्रेजेंट होगा तो आउटपुट तुम्हारा चेंज हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, सिंगल क्लॉक के लिए सिंगल आउटपुट ही होना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। ओके, सो इफ the output changes many times for a single clock, that is called race around condition, and that can be avoided by means of master slave flip flop. Okay, we'll definitely go there, but before going to that master slave flip flop, you have to understand what is race around condition. So समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, नहीं तो दोबारा हम बोलेंगे, बताएंगे और भी। बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। प्रॉब्लम नहीं है ना? रेस अराउंड कंडीशन क्या है? मतलब क्या है, सिंगल क्लॉक है लेकिन मल्टीपल आउटपुट में चेंज हो रहा है, ये जब होगा उसका हम लोग रेस अराउंड कंडीशन बोलेंगे। यहाँ पे सिंगल क्लॉक का हाई टाइम ज्यादा होने से ये हो रहा है। ओके, तो ये हम लोग दो तरीके से चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे। नंबर वन, इफ वी अप्लाई द एज दिया, दैट मींस पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज, तो भी ये नहीं होगा, और मास्टर स्लेव यूज करेंगे। सो मूव टू द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। So many master slave flip flop are there using SR flip flop, using D flip flop, using JK flip flop. So I am going to discuss about JK flip flop, using JK flip flop. So see, this is your master slave JK flip flop. Okay, that is your master slave pulsar JK flip flop. Okay. So see, what is the basic difference here? यहाँ पे देखो, ये भी एक JK फ्लिप फ्लॉप है, ये भी एक JK फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, ये आउटपुट का इनपुट में नहीं आ रहा है इसका, और ये भी जेके फ्लिप फ्लॉप है लेकिन इसका आउटपुट इनपुट में नहीं आ रहा है। फाइनल जो आउटपुट है वो इनपुट में आ रहा है। लेकिन नैरो सेल्स, यू कैन थिंक देयर आर टू स्टेजेस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इन नैरो सेल्स, यू कैन से दैट। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, देखो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है, ये राइट साइड का पार्ट है, दोनों दो पार्ट है इधर यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, सो 4 4 8 नैन गेट है। पहला जो 4 नैन गेट है वो वन ग्रुप में रहेंगे, इधर जो G5 G7 G6 और G8 है वो ऐड करेंगे। तो ये मास्टर है, पहला जो है ये मास्टर है, ये स्लेव है, ठीक है। ये मास्टर पार्ट बोलते हैं, इसको स्लेव पार्ट बोलते हैं, लास्ट पार्ट में। तो बेसिक डिफरेंस देखो, मेन चीज है यहाँ पे क्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है G1 एंड G2 के लिए। देखो मिडिल पार्ट में तुम सेपरेट करोगे तो ये 4 नैन गेट, लेफ्ट में भी 4 गेट है, ठीक है। तो पहला जो 4 नैन गेट है उसका जो इनपुट है, देखो यहाँ पे क्लॉक जब डायरेक्टली अप्लाइड, ओके। बट यहाँ पे देखो
clock is noted inverted here. Okay, so clock is inverted here. Okay, clock is inverted here, and again they are connected to the second part, that means slave part. Okay, so इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनिए। ये जब क्लॉक 1 होगा इधर, सो स्लेव स्लेव के लिए क्लॉक 0 होगा कि नहीं? श्योर होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट है। तो मास्टर के लिए जब क्लॉक 1 होगा, क्लॉक प्रेजेंट होगा, सेकंड पार्ट के लिए स्लेव के लिए वो क्लॉक एब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब ये मास्टर ऑन रहेगा, मास्टर पार्ट, तब ये स्लेव पार्ट ऑफ रहेगा। नाउ जब मास्टर पार्ट दिस पार्ट ऑफ रहेगा, ये पार्ट ऑन होगा। ओके, ये पार्ट ऑन होगा। सो बोथ द पार्ट्स विल नेवर बी एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली। इसलिए क्या होगा, मल्टीपल चेंज विल नेवर ऑकर हियर। ओके, सो यहाँ पे देखो, मान लो क्लॉक इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज क्लॉक, दिस इज हाई पार्ट, दिस इज लो पार्ट। सो ये कुल मिलाकर टोटल क्लॉक है, सिंगल क्लॉक। ओके, ये ऑन टाइम, ये ऑफ टाइम। Now this sort of clock has been used. Okay, this pulse. Okay, this one, this part up to this 0. तो क्या होगा? सो जब ये हाई होगा, देखो ध्यान से, जब ये हाई होगा तो ये मास्टर ऑन होगा। ओके, तो ये हाई के लिए, स्लैब के लिए ये क्या होगा, ये नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ये 0 होगा। तो तुम जानते हो जब क्लॉक में 0 होता है, इसका आउटपुट नेवर चेंज होता है। So output, that is Q bar, will never change. That means it is locked at previous state. But QM पर क्या होगा, इसका आउटपुट चेंज होगा, इसका आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि क्लॉक में हाई प्रेजेंट है, इसलिए ये चेंज होगा। लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, तो इसका आउटपुट कब चेंज होगा? देखो, जब ये क्लॉक पार्ट लो होगा, जब लो होगा, सो यहाँ पे क्लॉक जब लो होगा, तो ये मास्टर का पार्ट आउटपुट नेवर चेंज होगा, क्योंकि 0 मिल रहा है, क्लॉक में 0 मिल रहा है, इसलिए इट विल नेवर चेंज, इट विल बी एट इट्स प्रीवियस स्टेट। ओके, सो प्रीवियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। नाउ क्लॉक बार क्या होगा, ये 0 यहाँ पे है, लेकिन क्लॉक बार है इधर, क्लॉक बार हाई हो जाएगा। तो जब क्लॉक हाई होगा, इसका नॉर्मल ऑपरेशन होगा, तो इसलिए इनपुट में जो क्यूएम बार है, उसका लिए आउटपुट होगा। सो दे आर यूजिंग दिस पार्ट विल यूजिंग क्यूएम बार व्हेन द क्लॉक इनपुट इज लो। सो इसके लिए आउटपुट होगा। सो इसलिए क्या होगा, देखो फाइनली वी आर गेटिंग द आउटपुट कंप्लीटली elapsing this total clock. So हाई प्लस लो मिल के तुम्हारा आउटपुट हो रहा है। सो इसका लेंथ जितना भी लंबा हो, इसका असर नहीं पड़ेगा, मल्टीपल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हाई टाइम ज्यादा होने से भी क्या होगा, ये आउटपुट तो ऑफ ही होगा। सो ये पार्ट स्लेव पार्ट कॉमन होगा जब तुम्हारा क्लॉक का 0 पार्ट आएगा। सो ये हाई पार्ट जब इसके ज्यादा होने से भी क्या होगा, ये स्लेव का आउटपुट चेंज नहीं होगा until and unless clock having the lower part. So जब लोअर पार्ट आएगा, ओके, क्लॉक का जब लोअर पार्ट आएगा, तब तुम्हारा स्लेव का आउटपुट मिलेगा। सो हाई पार्ट में क्या हो रहा है, मास्टर का आउटपुट मिल रहा है, और लो में स्लेव का आउटपुट मिल रहा है। सो हाई और लो मिल के वी आर गेटिंग द आउटपुट। सो देयर इज नो चांसेस ऑफ हैविंग मल्टीपल आउटपुट चेंज फॉर ए सिंगल क्लॉक। यहाँ पे सिंगल क्लॉक के लिए सिंगल ही आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहे थे, सिंगल क्लॉक के लिए मल्टीपल चेंज हो रहा है। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है,
ये दो पार्ट है, मास्टर पार्ट है, ये पॉजिटिव पल्स के लिए ऑन है, ये नेगेटिव पल्स के लिए ऑन है। सो साइमल्टेनियसली दे आर नॉट remaining on, so that's why for a single clock output में single change होगा, so we can avoid race around conditions using master slave JK flip flop, but in the case of JK flip flop we never remove JK flip master slave, rather in the case of JK flip flop we are observing one problem, that is called race around conditions. So race around condition basically you keep in mind, that is the thing is that for single clock input के लिए multiple changes हो रहा है output में, that is not desirable. Single clock के लिए output में single ही output मिलना चाहिए, change never sequence नहीं होना चाहिए. So that is the case happening in the case of JK flip flop, and what I mentioned you in the case of master slave, we can easily avoid the race around conditions using master slave flip flop, because there are two parts. The first part is activated using only the high part of the pulse, and the second part of the flip flop is activated by means of the lower or the low value of the clock. So that's why for a single clock there should have single output change. Okay. So this is all about your master slave JK flip flop. Having any doubt, you are facing any problem, so you can tell me. I can repeat it once. देखो सोचो, 10-15 सेकंड के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। नाउ सी, यहाँ पे देखो प्रीसेट एंड क्लियर, दो दो पॉइंट यहाँ पे है, प्रीसेट एंड क्लियर. तो बेसिकली these two terminal are being used for presetting the flip flop or clear the flip flop. Okay, by using this clear flip flop you can reset the flip. That means तुम Q को 0 कर सकते हो. That is called resetting the flip flop. And preset means by using this terminal you can set the flip flop. So that means you can manage Q is equal to 1, Q is equal to 0. So that is the two terminals we can use practically. Resetting the flip flop and clear the flip flop. Clear means output is basically is resetting, and preset means output is setting. So these two terminals are useful. Sometimes whenever you are driving the operating the flip flops. So not only master slave, you can use SR flip flop, JK flip flop, or D or T, any sort of flip flops you can use reset and clear terminal. So classification JK flip flops and their operations is completed now. We'll go for conversion of flip flops. That means one flip flop to other flip flop. So before moving to that portions, if you are having any doubt about any flip flop starting from SR to master slave, so you can ask me, I can repeat it before moving to the next session. किसी को भी डाउट है तो बोलो, I can repeat once again. नहीं तो हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे. तो सिलेबस में तुम्हारे मिड सेम के लिए फ्लिप फ्लॉप तो की रखेंगे हम अभी तक जो हुआ. नेक्स्ट जो हम जाएंगे उसी से नहीं, जमीन का कन्वर्सन में हम नहीं देंगे पूछेंगे, क्लासिफिकेशन तक पूछेंगे पहले से
शॉर्ट पोस्ट से शुरू करके सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस, ओके, classification of flip flops, what is latch, what is SR latch, what is D flip flop, what is T flip flop, okay, what is advantage of SR flip flop, what is how to solve that problem, what is the disadvantage of JK flip flop, and how what is the remedy, everything, okay. Race around condition is most important in exam में वो आएंगे साथ आ जाएगा, तो ध्यान से पढ़िए ये, किसी को भी डाउट है तो पूछेंगे। So the next question is, एग्जाम में थ्योरी पार्ट भी लिखना पड़ेगा। मिड सेम में एक पैटर्न होता है ना? वो शायद वो की कुछ एमसीक्यू, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, ओके, माने सिंगल लाइन का और 2-3 लाइन के साथ ये पैटर्न है ना, वो पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न होता है ना, तो 20 मार्क्स का शायद होता है पैटर्न। यस ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सिंगल लाइन का शॉर्ट आंसर टाइप, ये होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इजी है सब्जेक्ट, कोडिंग भी है, ध्यान से पढ़ाई करो। थोड़े बहुत तो मैं तो बोल चुका हूँ, नंबर में तुमको दे दिया। मैं देख रहा हूँ तो तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मिक्सिंग में देखेंगे कितना नंबर मिलेगा। मैं जो क्विज ले रहा था वहाँ पे तो तुम्हारा नंबर ठीक है। लास्ट दिन मैंने लिया था वो कॉपी नहीं चेक किए मैंने, चेक करेंगे मिक्सिंग से पहले। तो मिड सेम अच्छा होना चाहिए, तो मैं सॉफ्ट पॉश, ओके, स्टैंडर्ड सॉफ्ट, स्टैंडर्ड पॉश, ओके, अच्छा, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, टेबुलर मेथड अच्छे से पढ़ाई करो, एडवांटेज डिसएडवांटेज सोचो, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन, हाँ, कॉम्बिनेशन सर्किट, व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। से मेंशन 3 differences between sequential circuit and the combination। सो 1 2 3 करके तुमको लिखना पड़ेगा कि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, मेमोरी पार्ट होता है, कॉम्बिनेशन में कोई मेमोरी पार्ट नहीं है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप तुम्हारा सिंगल बिट स्टोर करता है। सो फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ए सिंगल बिट, ओके, सो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली सिंगल बिट मेमोरी कहते हैं। और कम सीक्वेंशियल सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, और कॉम्बिनेशन सर्किट सेल्फ ये कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, जैसे तुम्हारा हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन सर्किट का एग्जांपल है। और सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल है जैसे मान लो फ्लिप फ्लॉप्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, रजिस्टर्स, ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। और फ्लिप फ्लॉप और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, द प्रेजेंट आउटपुट, ओके, सुन लो ठीक से, कौन बात कर रहे हैं सर, तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, और एक मैंने 3-4 डिफरेंस तो बोल दिया, और एक डिफरेंस है, तो वो है सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली, ओके, प्रेजेंट इनपुट ओनली, ओके, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट। But sequential circuit में present output depends not only the present input but also the future output. That is the most important definition. past output। Yes, past output. That means you are going to find out present output that depends only not only your present input, okay, but also the past output. Okay, so तुमको दिमाग में ये रखना चाहिए, तुम प्रेजेंट इनपुट फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा, उसके साथ वो जो पहले जो तुम्हारा आउटपुट था उसी से भी डिपेंड करेगा।
So these are the important class differentiation between your combinational circuit and the sequential circuit. So that's why flip-flops, these are called the memory element. So we'll move to the later portion, that is your conversions. Okay, flip-flop conversion. तुम्हारे पास बुक है ना, रेफरेंस बुक? बुक है तुम्हारे पास? नहीं? पीडीएफ है सर। पीडीएफ, ये पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। पढ़ाई करो, जिस पोर्शन में डाउट होगा, डिफिकल्टीज होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे। देखो फ्लिप फ्लॉप तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव सीन ट्रूथ टेबल आल्सो, ठीक है? तो नाउ द टॉपिक इज conversion. Okay, so one form to another form. Okay, so one form से हम लोग another form में कन्वर्ट करें। तो SR फ्लिप फ्लॉप ट्रूथ टेबल क्या है, तुम तो जानते हो ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है, मींस इनपुट आउटपुट रिलेशन, that is basically that is defined by the truth tables. So in the case of SR flip flop, we are aware about that if both the inputs are low, that means Qn plus 1 would be Qn, that is no change conditions. 0 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, that is reset. 1 0 होगा तो set होगा. So we know this much, and 1 1 होगा तो question mark, that means we can't define it. That is also drawback of this. So that is basically the truth table. I am discussing it once again because we use all this concept later on when we are converting one flip flop to other flip flop. So that's why I am repeating it once again. Again, therefore, that is called SR excitation table. SR excitation table. Excitable टेबल क्या होता है? एक्साइटेबल टेबल में उस फ्लिप फ्लॉप का प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट होता है। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, यूजिंग प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट वी कैन डिफाइन इनपुट कंडीशंस। लिसन केयरफुली, एक्साइटेशन टेबल में वहां पे क्या था, इनपुट एसआर फ्लिप फ्लॉप का सपोज इनपुट था, उसके लिए हम लोग आउटपुट डिफाइन किए थे। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट होगा, by using all those outputs you are going to find out the input conditions. Okay, you are going to find out the input conditions. तो बदले में तुम्हारे पास क्या है ना, प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, पहले क्या था और अब क्या है, ये आउटपुट तुम्हारे पास है, कुछ ना कुछ तो नोन होना चाहिए। so, ये नोन है, so by using this we'll go for finding out the input levels. Listen carefully. So how to find out? See, this is the procedure. Not necessarily today we will complete all the conversions, but before starting, the prerequisite you have to keep ready. What is your prerequisite? These are prerequisite. So input, output 0 था, आउटपुट नेक्स्ट स्टेट में 0 है, सो आउटपुट चेंज नहीं है। देखो प्रेजेंट स्टेट में 0 है, नेक्स्ट स्टेट में 0 हो गया, तो तुम बोलो तो तुम्हारे फ्रॉम योर साइड एनी वन 0 है, 0 रहेंगे, तो उसके लिए इनपुट कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, बोलो प्लीज हेल्प मी। 0 है, एक बार 0 0 ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं क्योंकि उसमें नहीं चेंज होगा, नो चेंज होगा, और 0 1 ले सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं। वेरी गुड, डेफिनेटली ये गुड आंसर। सो विल टेक योर आंसर 0 0 0 1,
तो कौन चेंज हो रहा है बाबू? आर चेंज हो रहा है, एस कांस्टेंट है, 0 0 0 1, करेक्ट। So both the cases S remains low. So S0 R0, S0 R1. So R change हो रहा है कि नहीं? Either 0 और 1. So इसलिए R को हम डोंट केयर देंगे। डोंट केयर का मतलब क्या है? वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। R में 0 होने से और 1 होने से आउटपुट का कोई असर नहीं पड़ता। R 0 होने से, जब S 0 होगा, R 0 होने से भी आउटपुट जो है R 1 होने से भी आउटपुट सेम रहेगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे 0 डोंट केयर। सो जैसे तुम बोला 0 0 0 1, सो R क्या हो रहा है? R पहले 0 नेक्स्ट में 1, इसलिए हम लोग R को डोंट केयर लिखेंगे। सो वी विल राइट R एज डोंट केयर, सो 0 डोंट केयर। समझ गया? सो जब प्रेजेंट स्टेट में 0, नेक्स्ट स्टेट में 0 होगा, सो इनपुट कंडीशंस क्या हुआ? 0 डोंट केयर। मींस इफ वी अप्लाई 0 0 और 0 1, सो ये प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट का वो जो रिलेशन है वो सेम होगा। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट में 0 है, नेक्स्ट स्टेट में 1, तो कैसे मिलेगा ये? कैसे मिलेगा ये? प्रेजेंट स्टेट 0 है, उसका 1 हो जाना चाहिए, तो कैसे हो? ये होगा ओनली वन सेट कंडीशन इज कंडीशन में देयर, होगा। सेट कंडीशन में होगा। s = 1 r = 0 होगा, इसमें वही है s = 1 r = 0। और इनपुट में सॉरी आउटपुट में 1 है, वो 0 होगा, तो ये भी रीसेट कंडीशन में होगा, दैट इज 0 1 में होगा, तो इसलिए 0 1 होगा। और प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1, देखो प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, ये कैसे होगा बोलो? प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, तो क्या क्या कंडीशन है? देखो 0 0 करोगे तो भी होगा कि नहीं? 0 0 में होगा और 1 0 में होगा कि नहीं? तुम्हारा आउटपुट 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट में, प्रेजेंट स्टेट में 1 है, तो तुम जब एस एवं आर में 0 0 करोगे तो क्या होगा? नो चेंज कंडीशन होगा, तो 1 नेक्स्ट स्टेट में 1 ही होगा। और एक होगा सेट स्टेट में, दैट मीन्स 1 0 में, इसी जैसे तुम्हारा 1 0 यहाँ पे ले लिया ना, 1 0, तो देखो 1 0 में भी आउटपुट 1 ही था, तो इसलिए 1 0 और 0 0, तो कौन चेंज हो रहा है? एस चेंज हो रहा है यहाँ पे, 0 0 1 0, तो इसलिए जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्रॉस लिख देंगे। सो क्रॉस 0, देखो ध्यान से, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 होगा जब इनपुट में 0 0 होगा, एस 0 आर 0 होगा, सो 0 0। और एक कंडीशन है आउटपुट 1 लाने के लिए, सेट कंडीशन, तब भी आउटपुट में हाई होगा सेट कंडीशन में, दैट इज s = 1 r = 0। तो देखो यहाँ पे s का वैल्यू एक बार 0 एक बार 1 हो रहा है, लेकिन r में 0 कांस्टेंट है, इसलिए डोंट केयर 0 है। सो कंबाइन ऑल दिस कॉम्बिनेशंस, बेसिकली दैट इज द आउटकम ऑफ द एक्साइटेशन टेबल, SR एक्साइटेशन टेबल। सो एक्साइटेशन टेबल में तुम्हारा आउटपुट रहेगा प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट का कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके बदले में तुमको रिक्वायर्ड इनपुट निकालनी है, दैट मींस द कंडीशंस फॉर इनपुट दैट यू हैव टू फाइंड आउट, एंड दैट इज यूजफुल